السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بہار بورڈ 12th کی کتاب کہکشاں حصہ دوم اردو کو آسان انداز میں اور امتحانی نقطۂ نظر سے پڑھیں گے۔ یہ سبق آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ اگر آپ واقعی اردو میں مضبوطی چاہتے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری۔ آج ہم پڑھیں گے خاکہ نگاری کے بارے میں۔ تو خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف یہاں دے دی گئی ہے کہ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی ہی خاکہ نگاری ہے۔ یعنی کوئی بھی پرسنالٹی ہو، کوئی بھی بڑے شخص ہو، تو لکھت روپ میں جو بات اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں وہ خاکہ نگاری کہلاتی ہے۔ خاکہ نگاری کو انگریزی میں اسکیچ رائٹنگ یا کیریکٹر اسکیچ بھی کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کو ریکھا چتر لیکھن، چرتر چترن کہا جاتا ہے۔ بہرحال خاکہ نگاری میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کی جاتی ہے، لکھت روپ میں بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ اب خاکہ نگاری اردو ادب کی ایک اہم نثری صنف ہے۔ یہ جو ہے خاکہ نگاری جو ہے اردو ادب کی ایک اہم نثری صنف ہے، یعنی یہ نثر میں لکھا جاتا ہے، خاکہ نظم میں نہیں لکھا جاتا ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس میں کسی شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات کو بیان کیا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل اس کی خصوصیات جو ان کی خوبی ہے اس کو خوبصورت اور مختصر اور مؤثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے خاکہ کے اندر۔ مقصد یہاں پر صرف تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس شخصیت کی اصل پہچان، اس کے عادات، اخلاق، مزاج، طور طریقے، اس کے کردار کو نمایاں کرنا مقصد ہوتا ہے خاکہ نگار کا مقصد، کہ کسی شخص پر جو خاکہ لکھا جاتا ہے تو ان کے ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی جو اس کی جو خصوصیات ہیں، ان کا جو طور طریقہ، اخلاق ہے، خوبی کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے خاکہ کے اندر۔ اب یہاں پر ایک بات کہی گئی کہ یہ تصویر، یہ جو خاکہ کسی کا ہم لکھ رہے ہیں، یہ سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، متین بھی اور ظریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص سنجیدہ ہو، یعنی سوچ سمجھ کر بات کرنے والا ہو، غیر مزاحی اور ذمہ دار ہو، تو اس کا خاکہ سنجیدہ انداز میں لکھا جائے گا۔ اگر ذمہ دار شخص ہے، سمجھ بوجھ والا انسان ہے، اگر مذاق کا عنصر اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو اس کا جو خاکہ لکھا جائے گا وہ سنجیدہ ہوگا، اس میں لایعنی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوگی، اس میں مذاق والی باتیں نہیں ہوگی، یعنی سنجیدہ انداز میں اس کا خاکہ لکھا جائے گا۔ متین بھی لکھا ہے۔ متین کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص باوقار اور پختہ مزاج ہو تو اس کا خاکہ متین انداز میں بیان کیا جائے گا، اس کا خاکہ متین انداز میں لکھا جائے گا۔ جس طرح خاکہ سنجیدہ بھی ہوتا ہے، متین بھی ہوتا ہے۔ متین ہونے کے لیے وہ شخص باوقار شخص ہو، پروقار شخص ہو، تو اس کا خاکہ متین ہوگا۔ اور ظریفانہ رنگ کا بھی خاکہ ہوتا ہے۔ ظریفانہ رنگ خاکہ کا مطلب یہ ہے اگر اس شخصیت کے اندر مذاق کا پہلو ہو، وہ ہنسمکھ مزاج انسان ہو، خوش مزاج انسان ہو، مزاحیہ انسان ہو، تو اس کا خاکہ مزاحیہ انداز میں لکھا جائے گا، ظریفانہ انداز میں اس کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاکہ سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، متین بھی ہو سکتا ہے، ظریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاکوں کی نئی نئی قسمیں بنتی ہیں۔ عام طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خاکہ نگار شخصیت کے نقش و نگار کو، ان کے روپ کو، ان کے بارے میں واضح کرتے ہوئے ذرا سی دل لگی سے بات نہیں ہے، یعنی جس کے خاکہ لکھ رہا ہے تو خاکہ نگار جو ہے، جس کا خاکہ جس شخصیت کا لکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں لکھتے لکھتے وہ ہنسی مذاق کی بات بھی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اکثر و بیشتر خاکے کہیں نہ کہیں ظریفانہ رنگ لیے ہوتے ہیں۔
उसमें मजाक की बात होती है। ज़रीफ़ाना रंग का खाका अक्सर व बेशतर हुआ करता है, लिखने वाला लिख डालते हैं हंसी मजाक की बातें, शायद इसीलिए खाका उड़ाना मुहावरा बना, किसी का मजाक उड़ाना। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि खाका में किसी का मजाक ही उड़ाया जाता हो। अच्छी खासी तादाद में ऐसे खाके मौजूद हैं जो नहायत संजीदा आलिमाना है, बावकार है, लायानी बातों से उस खाका में बचा गया है, इल्म की गहराई की बातें उसमें लिखी गई है, ये बात कही गई है। उस बात को निगलेक्ट किया गया कि खाका में मजाक ही नहीं उड़ाया जाता है, बल्कि उसमें कीमती बातें भी हुआ करती हैं। इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खाके हर तरह से लिखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में, उर्दू की अदबी तारीख़ पर गौर करें तो महसूस होगा कि नावल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालिब में भी खाकों के बेहतरीन अज्जा मौजूद हैं। यानी खाका की पहले अदबी सूरत हासिल नहीं थी, यानी इसको अदबी मर्तबा हासिल नहीं था, आज़ाद सिन्फ़ के तौर पर इसको फ़रोग़ नहीं दिया गया था, बल्कि खाका जो है ये तज़किरा के साथ, नावल के साथ, अफसाने के साथ ही बयान होता था, इसकी अलग से कोई हैसियत नहीं थी। बाद में ये डेवलप किया और इसको आज़ाद सिन्फ़ के तौर पर इसको फ़रोग़ दिया गया खाका को। बाद में इसकी जो है अलग इसकी सिन्फ़ की हैसियत का इसको मर्तबा बाद में हासिल हुआ। पहले जो ये चिपक करके आता था दास्ता के साथ, तज़किरा के साथ, नावलों के साथ, अफसानों के साथ, मसनवियों के साथ ही उसका ज़िक्र हुआ करता, अलग से उसकी अदबी कोई हैसियत हासिल नहीं थी। आज़ाद सिन्फ़ के तौर पर फ़रोग़ बाद में इसको दिया गया है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अब कहानियों, नावलों के साथ साथ अलग से भरपूर तादाद में खाके दस्तयाब है, यानी अलग से आप जो है खाका मौजूद है। खाकों में तीसरा पैराग्राफ देखें, खाकों में बैक वक्त खुद नविश्त यानी ऑटोग्राफी पाया जाता है, यानी अपने बारे में भी कोई शख्स खाका लिख सकता। सवाने यानी किसी की जीवनी भी लिखी जा सकती है, सवाने हयात, सवाने उम्री। याद निगारी यानी कोई नोट लिख सकता, अपने बारे में गुजरे हुए बातों को भी कोई कलमबंद कर सकता। इंशाइया ये जो है ये मज़मून की बिगड़ी हुई शक्ल है, उसको इंशाइया कहा जाता है। इंशाइया को आप यूँ समझें कि एक लड़की है, वो ब्यूटी पार्लर में गई, उसके बाद बन सवर करके वो सज करके ढज करके वहाँ से निकली, तो अब अभी वो मज़मून के मानिंद है। किसके मानिंद है? वो मज़मून के मानिंद है। जब उस पर पसीना आ गया गर्मी की वजह से, तो उसका मेकअप धीरे धीरे ख़त्म होना, उड़ना शुरू हो गया, ढलना शुरू हो गया, पसीना की वजह से उसका चेहरा तरबतर हो गया। तो चूँकि अब उसका शक्ल बिगड़ गया है, तो अब जब शक्ल बिगड़ गया है तो ये इंशाइया के मानिंद है। खुलासा ये है कि मज़मून की बिगड़ी हुई शक्ल को इंशाइया कहा जाता है। इंशाइया सीरियल के मानिंद होता है कि एक शख्स जो है कोई बात कह रहा है, वो भटकते भटकते कुत्ता बिल्ली करते करते कहीं पर आकर के एंड कर देता है, लास्ट कर देता है और ऑडियंस पर छोड़ देता है कि वो आगे की बात खुद समझे। यानी सीरियल के भी मानिंद ये इंशाइया हुआ करता है। और अफसानों के साथ साथ मज़मून के अज्जा शामिल होते हैं। खाका निगार का कमाल ये है, यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि नावल किसे कहते हैं। यहाँ नावल का तज़किरा आया है, अफसाना किसे कहते हैं, तज़किरा किसे कहते हैं, दास्ता किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं, याद निगारी किसे कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। यहाँ हम मुख्तसर अंदाज में आपको समझा देते हैं, इंशाअल्लाह आगे बात आएगी तो और उसको पूरी वजाहत के साथ उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। अभी यहाँ पर मुख्तसर अंदाज में उसकी तशरीह कर देते हैं और आप उस बात को अच्छी तरह याद रखेंगे कि नावल कहते हैं तवील नसरी कहानी को, लंबी नसरी कहानी को नावल कहा जाता है, और अफसाना मुख्तसर नसरी कहानी को कहा जाता है। और तज़किरा जो होता है ये मशहूर शख्सियात का लिखा जाता है, शोरा वगैरह का लिखा जाता है, उनके हालात को, उसके कारनामे को कलमबंद किया जाता है। किसके अंदर? तज़किरा के अंदर। दास्ता, इसमें ख़याली कहानी को बयान किया जाता है, इसको दास्ता कहा जाता है। मसनवी में लंबी कहानी, दास्ता वगैरह को शेरी अंदाज में बयान किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मसनवी कहते हैं। मसनवी के माने दो के आते हैं, आगे पढ़ेंगे। याद निगारी किसे कहते हैं? तो गुज़रे हुए वाक़यात को जो हम कलमबंद करते हैं उसको कहा जाता है याद निगारी। तो आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। खुद नविश्त में क्या होता है? इंसान अपने बारे में लिखता है, अपनी जीवनी आत्मकथा अपनी बयान करता है। सवाने बायोग्राफी किसी का
किसी का क्या होता है, किसी की जीवनी को बयान किया जाता है, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, यादनिगारी भी समझ गए, इंशाइया भी समझ गए। मजमून जो होता है ये क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर सैर हासिल बहस करना, ये मजमून कहलाता है। अगर गाय पर लिख रहे हैं, कोई चीज़ लेख लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो उसके बारे में उसके 4 टांग होते हैं, 2 आँख होती है गाय को, एक लंबी पूँछ होती है, इस तरह से उसके बारे में पूरी तफसील से बनाना, सैर हासिल बहस करना, ये मजमून कहलाता है। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद हो गई। आगे चलते हैं। खाका निगारी का कमाल ये है कि उन तमाम असनाफ सिन्फ की जमा है कि दाराकार को समझते हुए अपने खाके की हद मुतय्यन करें। बेहतरीन खाका वही होगा, वही नहीं पढ़ेंगे, वही पेश के साथ जिसमें सवाने हो। बेहतरीन खाका कौन होगा, जिसमें सवाने हो, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसकी जीवनी को बयान किया जाए। आंखों देखा वाक़यात हो, जो रियल में बात हो, जो दुर्घटना उसके साथ हालात पेश आए, उसको लिखा जाए। हवाई फायरिंग नहीं होनी चाहिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। आंखों देखा जो वाक़यात पेश आया हो उसको कलमबंद करना चाहिए। शख्सियत के दिलचस्प पहलू को बयान करना चाहिए खाका में। साहिब खाका की असल कदर कीमत का तयन हो। अगर खाका निगार इन तमाम हिस्सों में तवाज़ुन कायम नहीं कर पाता, यानी अगर वह आंखों देखा वाक़यात नहीं लिखता, सवाने को नहीं लिखता, उसके दिलचस्प पहलू को नहीं बयान करता है, तो ये अच्छा खाका नहीं कहलाएगा, उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। खाका निगार अगर वाक़यात की खतौनी जमा कर दे तब भी वो अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। साहिब खाका की ज़िंदगी की मुश्किलात बयान करने में अगर पढ़ने वालों को रुलाता ही रह जाए तब भी वो अच्छा खाका नहीं होगा। खाके में इतनी रंग आमेज़ी कर दी जाए कि पढ़ने वाला हंसते हंसते बेदम हो जाए, तब भी खाका निगार की जुमले फ़राइज़ अदा नहीं होंगी। खाका निगार इन तमाम मरहलों में माहिराना तवाज़ुन कायम कर दे तो वो खाका बेमिसाल माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन खाका वही कहलाएगा जिसके अंदर क्या हो, सब चीज़ इख्तिसार के साथ, जची तुली अंदाज में, एतदाल के साथ। ऐसा नहीं कि वाक़यात बयान कर रहे हैं तो भर भर के वाक़यात बयान कर रहे हैं, रोलाने वाली बात बयान कर रहे हैं तो भर भर के रोलाने वाली बात कर रहे हैं, हंसाने वाली बात कर रहे हैं तो भर भर के हंसाने वाली बात, यानी इसके अंदर बैलेंस और तवाज़ुन के साथ किसी चीज़ को बयान करना चाहिए और रियल बात को बयान करना चाहिए, हकीकत पर मबनी बात को बयान करना चाहिए। गलत बयानी से खाका में काम नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं। उर्दू में खतूत गालिब, खत की जमा खतूत, और आब हयात में शख्सियात के ताल्लुक से ऐसे नसर पारे मिलते हैं, मौजूद हैं, जिन्हें खाकों के सिलसिले में इब्तदाई तसव्वुर करना चाहिए। यानी खतूत गालिब, आब हयात वगैरह से ये पता चलता है कि ये इब्तदाई शक्ल थी खाके की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी के उन्वान से लिखा, जिसे खाका निगारी की तारीख़ में शाहकार तस्वुर किया जाता है। यानी उर्दू का बाज़ाब्ता खाका निगार मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग को कहा जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद पर एक खाका लिखा जो एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, किनका लिखा हुआ खाका? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का लिखा हुआ खाका है। किस पर इन्होंने खाका लिखा? तो अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद पर इन्होंने खाका लिखा है। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका इसको करार दिया जाता है। अच्छी तरह याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। रशीद अहमद सिद्दीक़ी के आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत को कायम किया। फिर उसके बाद खाकों को मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बाद रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने एक खंदा नामी एक खाका की किताब को लिखा जिसमें 12 मशहूर शख्सियात का खाका पेश किया गया है। फिर उसके बाद जो अशरफ सबोई है, शाहिद अहमद देहलवी ने बाज़ाब्ता खाके लिखे, खाके की रिवायत को आगे बढ़ाया। इन सब का रोल रहा खाके को आगे बढ़ाने में। ज़राफ़त निगारों में, यानी हंसी मजाक की बात लिखने में, और अफसाना निगारों की सरगर्मियों से खाके की निगारी की तरफ तवज्जो दी। इस सिन्फ़ को मकबूल बनाने में उनकी वक़ी खिदमत रहा। इन सब शख्सियत का बड़ा योगदान रहा है। मज़ा निगारों में शौकत थानवी, यूसुफ नाज़िम, मुजतबा हुसैन, अहमद जमाल पाशा। अफसाना निगार यानी मज़ा निगारों में भी शौकत थानवी, यूसुफ नाज़िम, मुजतबा हुसैन और अहमद जमाल पाशा लोग ऐसे शोरा गुज़रे हैं, ऐसे अजीम शख्सियत गुज़रे हैं कि जिन्होंने खाका लिखा। मज़ा निगारी के साथ साथ खाका निगारी के भी फ़राइज़ को अंजाम दिया है। इसी तरह अफसाना निगारी के साथ साथ इसमें चुगताई ने, मंटू ने क्या किया है? खाका भी लिखा है। अब आम तौर पर अदीबों और शायरों या बहुत मशहूर शख्सियात के ही खाके लिखे जाते हैं। जो बड़े शख्सियत हो उसके बारे में लोग खाके लिखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि खाका किसे कहते हैं, खाका का दौर कब से शुरू हुआ है, खाका पहले किसके साथ शामिल था, फिर अलग से इसको आज़ाद सिन्फ़ करार दिया गया है, खुद नविश्त किसे कहते हैं, सवाने किसे कहते हैं, याद निगारी किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं। एग्ज़ाम में जो पूछने वाला है असल में वो है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कैसे क्या कहलाती है? खाका निगारी। इसको याद रखेंगे। खाका उड़ाना क्या है? मजाक उड़ाना है, ये मुहावरा है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद एक लफ्ज़ आया है
यहाँ पर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग उर्दू के पहले बाज़ाब्ता खाका निगार है, इन्होंने अपने उस्ताद पर खाका लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद पर। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। तो ये बातें चंद बातें थी जो कीमती बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकेगी और आप इम्तिहान में आला नंबरात से, अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम।